So till now we have covered the Cauchy's theorem. Okay, so can anyone tell me what is the Cauchy's theorem? What is the general statement? Tell me in your language. I don't want the exact statement or exact theorem. What do you understand as far as Cauchy's theorem is concerned? What is the Cauchy's theorem? Anyone? What is the Cauchy's theorem? From Cauchy's theorem, we will get the integral of f of z over c is what? What is that value? What is Cauchy's theorem? There are two theorems. One is Cauchy's theorem. Second is Cauchy's integral theorem, and the extension of Cauchy's integral theorem. Okay, which you can consider under Cauchy's integral theorem itself. Okay, so Cauchy's theorem we have completed. Cauchy integral theorem also we have completed. Extension of Cauchy integral theorem also we have completed. Okay, now the next theorem is Cauchy's residue theorem. Okay, so can anyone tell me what is Cauchy's theorem quickly? What is Cauchy's theorem? Yes. When the function is continuous at all the points inside the curve and on the curve. Yes. Okay. If your function is analytic at all the points on and inside the curve C, then your integral is 0. That you will get from Cauchy's theorem. Okay. The next theorem is Cauchy's integral theorem. Okay. What this theorem tells you, if your function is not analytic at one point, okay, which lies inside the curve C, okay, अगर कर्व के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ओके, ओनली वन पॉइंट, ओके, ओनली वन पॉइंट इज लाइज इनसाइड द कर्व सी वेयर योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, देन बाय Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला द f of z upon z minus a dz is equal to 2 pi I into f dash of a. So remember this formula is for one point which lies inside the curve. Okay, the extension of Cauchy's integral formula, okay, what is the extension of Cauchy integral formula? What is the difference between Cauchy integral formula and extension of Cauchy integral formula? So in that extension you can consider degree of this z minus a. Okay, so if degree of z minus a is equal to 1, then we have to use Cauchy integral formula, and if it is greater than 1, means 2, 3, 4 and so on. Okay, so A is the point where your function is not analytic, which lies inside the curve C, and अगर उसकी degree x से ज़्यादा आ रही है, then we have to use the extension formula. Okay, and I think this formula is like this: f of z upon z minus a raised to 1 minute over a c, z minus a raised to n plus 1 dz equal to what? Can anyone tell me what is the extension of Cauchy's integral formula? क्या लिखना है आगे? What is the extension? Yes. What is the extension? 2 pi I upon n factorial. N factorial. Okay, less than this degree. So n factorial multiplied by nth derivative of this function at a. है ना? यहाँ पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हो जब पावर उसकी 1 आती है. ओके, सो n प्लस 1th पावर में आपको यहाँ पे fn कंसिडर करना है. ठीक है, सो सॉरी यहाँ पे f ऑफ a था ना, सॉरी, हाँ, लेस देन 1 होती है ना, इसकी पावर अगर 1 है तो इससे सो वन नंबर लेस, सो इफ डिग्री इज 1 यू हैव टू कंसिडर ओनली f ऑफ a, इफ डिग्री इज n plus 1 then you have to consider fn at a, one number less. ठीक है, so these are the result which we already completed in our last few sessions. Okay, I have also shared the recording. Please go through it. Okay, this is one of the important part. Okay, in unit 2 इस पर बहुत सारे questions create हो सकते हैं, और बस value change करके question को change करना भी easy होता है. So many questions can be created as far as this topic is concerned. And now the last topic. Okay, क्योंकि अभी तक आपने क्या learn किया है? Where the function is analytic at all points, analytic at all point except one point. Now our next aim is what? Analytic at all point, okay, except more than 1 points, more than 1 points. Okay, so let us start. So let us first understand what is the definition of singular point. Okay, already मैंने define किया है, बस आपको particular word में मुझे बस explain करना है. Okay, singular point is a point where your function is not analytic. Okay, so it is a point where your function is not analytic. Okay, तो जो भी मतलब इससे पहले मैं आपको बोलता था problematic point, critical point, or this is the point where your function is not analytic. So these points are actually called as singular point. Okay, so now we have a specific word for this. So it is a point
is a point where function g of z, okay, now I assume this g of z is your given function. f of z इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि f of z आपका ऑलरेडी उस फॉर्मूले में आ रहा है वो नोटेशन. सो इट इज अ पॉइंट वेयर अ फंक्शन g of z is not analytic. ठीक है. So if z equal to z naught is called a singular point provided that g of z is not analytic at z equal to z. ठीक है. So simple language में याद रखो, मैथमेटिकली कुछ जाने की इतनी जरूरत नहीं है. ओके. So what is this first definition? It is a point where your function is not analytic. Okay. Next is pole. So just 1 minute. पोल को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ मैं? if z equal to z naught, or let me make it more simple, z equal to a is singular point of say g of z. अभी आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? सिंगुलर पॉइंट ऑफ g of z का मतलब क्या है? दिस g of z इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू a. मैं एक बार लिख लेता हूँ. इट मीन्स g of z इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू a. ठीक है. It means this g of z is not analytic at z equal to a. So if z equal to a is a singular point of g of z, then degree of the factor z minus a, let us assume that degree to be m, okay, it's called pole. Okay, so here z equal to a is pole of order m. ठीक है. ये जो मैं सारे डेफिनेशन दे रहा हूँ ना, ये मैं सिंपल लैंग्वेज में दे रहा हूँ. अगर आप बुक रेफर करोगे ना तब आपको इसके पीछे क्या क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो समझ में आएगा. मैं उसको सिंपल करके आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ तो आइडेंटिफिकेशन में ईजी होगा. ठीक है. सो मतलब आपको ये ऐसी डेफिनेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी. ओके. सो सिंगुलर पॉइंट इज व्हाट? इट इज अ पॉइंट वेयर योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. करेक्ट. पोल मीन्स व्हाट? इफ z इज इक्वल टू a इज योर सिंगुलर पॉइंट और z इक्वल टू a इज द प्रॉब्लमेटिक पॉइंट. आपको बस क्या देखना है? जस्ट आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ z माइनस a फैक्टर. इसकी जो भी डिग्री होगी दैट बिकम अ पोल. पोल ऑफ व्हाट? z इक्वल टू a पॉइंट. पोल ऑफ पॉइंट होता है ये. ओके. सो z माइनस a की डिग्री अगर m आती है देन z equal to a is a pole of order m. For example, I can take many examples on this. For example, let us define f of z is equal to 1, okay, 2z minus 3 upon z minus 1 cube and z plus 5 raised to 2. Okay. So consider this function. Now tell me what are the singular points? First tell me what are the singular points of this g of z. Bolo. Tell me the points where not analytic. हाँ बोलो. Z equals to z equal to 1 and minus 5. z equal to 1 and minus 5. z equal to minus 5 are the singular points. Means these are the points where your function is not analytic. Okay, done. तो ये आपको डेफिनेशन क्लियरली समझ में आ गई. नाउ नेक्स्ट मुझे क्या लिखना है? व्हाट इज द पोल ऑफ z इक्वल टू 1? पोल इज डिफाइंड ओनली फॉर अ सिंगुलर पॉइंट्स, नॉट फॉर द अदर पॉइंट्स. रिमेंबर, मैं पोल की डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूं ओनली फॉर अ सिंगुलर पॉइंट. ओके, लेट मी हाईलाइट दिस वर्ड, ओनली फॉर अ सिंगुलर पॉइंट. ठीक है. नाउ ओके. So therefore z equal to 1 is pole of order, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ. हाँ. And also tell me z equal to minus 5 is pole of
ऑर्डर वॉट. ओके, तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया ऊपर. आपको बस क्या देखना है, z इक्वल टू एज अ सिंगुलर पॉइंट, z माइनस a की पावर आइडेंटिफाई करो, वो जो भी पावर है दैट बिकम द पोल. सो नाउ टेल मी इन दिस केस, इन दिस g ऑफ z इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर व्हाट? 3. 3. 3. z माइनस 1 की पावर, सो इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3. इस पे ही आपका नेक्स्ट थ्योरम डिपेंड है. तो ये मैं इसलिए सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं. एंड z इक्वल टू माइनस 5 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर व्हाट? 2. 2. Done. Okay. So I need this two definition to define the next theorem, which is Cauchy's residue theorem. ठीक है. So now I think you all are aware about the singular point. Next is pole of the singular point. ठीक है. Now we are ready to define the Cauchy's residue theorem. Okay. So let me write the statement first. Yeah, if g of z is analytic on and inside the curve C except the finite number of singular points let us consider those singular points z equal to z0, z1, z2 up to zn. okay यहाँ तक स्टेटमेंट समझ में आ रहा है. g ऑफ z इज एनालिटिक ऑन एंड इनसाइड द कर्व C except the finite number of singular points which are say z0, z1, z2 up to zn. okay, it's better to start ठीक है, let z0, z1, z2 up to zn. okay, and m0, m1 up to mn are the poles of the singular points z0, z1, zn रिस्पेक्टिवली. फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. ये अभी आपको ऐसे भी समझ में आएगा. नो नीड टू कंसिडर z इक्वल टू, वो दिस आर द पॉइंट्स बेसिकली. सो क्या किया है मैंने कंसिडर, आई हैव गिवन वन फंक्शन g ऑफ z. ओके, मैं डायग्रामेटिकली भी शो करता हूँ. सो दिस इज ओके, आई हैव गिवन वन फंक्शन g ऑफ z. ठीक है, एक मेरे पास फंक्शन है g ऑफ z. दिस फंक्शन इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट द फाइनाइट at all point inside this curve C. okay, except the finite number of points. तो वो सारे पॉइंट्स अंदर है, z0, z1 and so on. यहाँ पे कहीं पे आपका zn पॉइंट होगा. okay, so this g of z is analytic at all point except the singular points. okay, z0, z1 and so on zn. okay, these are the point which lies inside the curve. okay, and मैंने क्या किया है, हर एक पॉइंट की मेरे पास क्या है, I have its pole also. okay, so z0 is a pole of order, क्या कंसिडर किया है, z0 is a pole of order M0. z1 is a pole of order m1 and zn is a pole of order mn. okay, and this is my function. okay, so now it is clear that this given function is not analytic at फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. अभी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैंने फाइनाइट पे फोकस किया है. सो दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल फॉर वन पॉइंट लाइज इनसाइड दिस सर्कल. दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर मोर देन वन पॉइंट लाइज इनसाइड दिस सर्कल. तो आप डायरेक्टली कॉची इंटीग्रल को इससे रिप्लेस भी कर सकते हो. ओके, बट आपको मैंने पहले ही क्लियर किया कि अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है तो कॉची इंटीग्रल से इजी होगा. एक से ज्यादा आ रहा है तो ही आपको कॉची रेसिड्यू से जाना है. ठीक है, रिमेंबर दिस. एंड नाउ सो इन दिस केस now let me write the integral. Then so in this case
the integral over a closed curve C g of z dz is equal to 2 pi I in bracket r1 in bracket r0 plus r1 and so on up to rn. ये थ्योरम है. अभी आपका ऑब्वियस क्वेश्चन होगा व्हाट इज दिस r0 r1 एंड r1. ओके, हमें तो समझ में आ रहा है कि z0 z1 zn आर दी सिंगुलर पॉइंट्स, m0 m1 mn आर दी व्हाट कैन आई से दिस आर दी पोल्स. ओके, बट व्हाट इज दिस दिस r0 एंड r1, तो वो मैं अभी आपको डिफाइन करके दे रहा हूँ. ठीक है, सो लेट मी डिफाइन दिस. where is r0 r1 and so on rn are residues at z0 z1 and zn. तो these are called as residue, and इसके वजह से उसका टाइटल क्या है, रेसिड्यू थ्योरम. ओके, दैट्स व्हाई द थ्योरम एज टाइटल इज रेसिड्यू थ्योरम. नाउ हाउ यू कैलकुलेट दोज रेसिड्यूज, है ना, मतलब r0 की वैल्यू क्या होगी, r1 की वैल्यू क्या होगी. ओके, आई हैव टू डिफाइन ओनली दैट पार्ट नाउ. ओके, व्हाट इज दिस rn इन जनरल. ठीक है, सो वेयर and rn means residue at nth point, ठीक है, is equal to 1 upon n minus 1 factorial in square bracket d n minus 1 upon dz n minus 1 z minus ये आर्यन क्या है, आर्यन क्या है, बोलो, व्हाट इज आर्यन, रेसिड्यू एट विच पॉइंट, दिस zn. ठीक है, तो वो पॉइंट यहाँ पे लेना है, जिस पॉइंट का रेसिड्यू कैलकुलेट कर रहे हो, z माइनस ऑफ दैट पॉइंट. ओके, इन दोनों में कनेक्शन याद रखो, इन दोनों का कनेक्शन याद रखो. मैंने इन जनरल दिया, मतलब n इक्वल टू 1 पुट करके 2 पुट करके आप सारे रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, ये हो गया, इसकी पावर n ही लेनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है g ऑफ z से, गिवन फंक्शन से, एंड कैलकुलेट दिस वैल्यू एट z इक्वल टू z. ओके, आई नोट इनिशियली इट विल टेक टाइम टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, और मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ वेदर आई राइट इट प्रॉपरली और नॉट. आई हैव चेंज द नोटेशंस, थोड़ा ठीक है. इट्स करेक्ट. ओके, एंड विल टेक डायरेक्टली वन एग्जांपल ऑफ दिस, तो आपको और क्लियर हो जाएगा. यहाँ तक समझ में आ रहा है. अभी थ्योरम क्लियर हो गया, क्या क्या थ्योरम में चाहिए आपको. फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए वो एनालिटिक नहीं है, उस हर एक पॉइंट के आपके पास ऑर्डर है. ओके, दिस इज और पोल है, हर एक रेसिड्यू पॉइंट का आपके पास पोल है. ओके, हर एक सिंगुलर पॉइंट का आपके पास पोल है. सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन द कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम इज व्हाट, 2 pi I in bracket are not sum of the residues. This theorem is like this, 2 pi I multiply by sum of the residues. आपको ये ऑनलाइन में 1 मार्क के लिए ऐसे भी स्टेटमेंट आ सकता है. दिस कैन बी कंसिडर एज 2 pi I multiply by sum of the residues. ओके, डन. नाउ हाउ यू कैलकुलेट दिस रेसिड्यूज. रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करने, आर्यन का फॉर्मूला मैंने दिया, 1 upon n minus 1 factorial. व्हाट इज दिस n, जस्ट 1 मिनट, वेट, ये एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, पोल पे डिपेंड है सब कुछ. ये थोड़े बहुत नोटेशन चेंज करने होंगे मुझे. अभी मैंने सेम ही रखा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हाँ नहीं, बट मुझे ये चाहिए mn इज द पोल ऑफ ऑर्डर ना, सो आई वांट दैट टर्म. सॉरी, इट डिपेंड ऑन पोल ना, पोल का रोल ही नहीं आ रहा है फिर. ये आर्यन इज द रेसिड्यू एट zn पॉइंट, बट ये जो zn पॉइंट है, इस zn पॉइंट की व्हाट इज द पोल ऑफ दिस zn, व्हाट इज द पोल ऑफ दिस zn, mn. गुड. हाँ, तो इस पे वो सब कुछ डिपेंड है, तो वो मैं चेंज कर लेता हूँ. तो अलग कलर से लगता हो तो आपको समझ में आएगा. सो 1 अपॉन दिस नंबर, बाकी सारे एज इट इज है, n को इससे रिप्लेस करना है. ठीक है, दिस नंबर माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस नंबर माइनस 1, दिस नंबर माइनस 1, दिस नंबर. ठीक है, बाकी एज इट इज.
ओके हाँ, नाउ इमीडिएटली लेट मी टेक वन एग्जांपल, तभी ये क्लियर होगा. ओके, एग्जांपल ही लेते हैं डायरेक्टली. पहले इजी लेता हूँ, ये भी थोड़ा टाइम लेगा, बट इसमें कंट्रोल लिखा ही नहीं है. ठीक है, लेट मी टेक दिस वन सिंपल एग्जांपल. ओके, so in solution, what is given? We have given this integral over c cot of z, but what is the value of cot z? Have we write cot z? Cos z upon Sin Z. okay, so this is your given integral. Therefore, what is my g of z? Cos z upon sin z. Okay, now let me draw the curve first. Z equal to 4. So z equal to 4 हमें draw करनी है. 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है. So now let me draw it properly. ठीक है. Okay, now so this is 1 2 3 4. या पॉइंट्स ऐसे एज्यूम करो. हाँ, ओके, सो दिस इज द सर्कल. ये आपको पता है ना, दिस z इक्वल टू 4. मॉड z इक्वल टू 4 इज अ सर्कल whose center is 0 0, radius is 4. whose center is 0 0, radius is 4. अभी क्लियर हो जाएगा. हाँ, नाउ तो कर्व भी आपने ड्रॉ की. दिस इज योर कर्व C. ओके, डन. नाउ so this g of z, or first find the singular points of this g of z. Singular points is nothing but find the points where this function is not analytic. Okay, therefore singular points of g of z are, okay, these are the points where what? These are the points Denominator will be 0. 0. Okay, these are the points where denominator is 0, means sin z equal to 0. तो बोलो कौन कौन से पॉइंट्स के लिए sin 0 0 आता है, sin z 0 आता है? L pi. हाँ, 0 0. Pi minus pi. Pi. pi 3 pi by 2. 2 pi minus 2 pi, करेक्ट है? Yes, sir. 3 pi minus 3 pi. Okay, at all these points, just 1 minute. At all these points your function is not analytic, and so on and so on. ठीक है, करेक्ट है, यहाँ तक करेक्ट है. नाउ पाई की वैल्यू आपको पता है 3 पॉइंट समथिंग है ना. सो इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स आपके सर्कल के अंदर आ रहे हैं? ओके, आई वांट दैट इंफॉर्मेशन. बट 0 pi minus pi. 0 देन Pi and minus. पॉइंट एक कंफर्म आने वाला है, माइनस पाई भी कंफर्म आने वाला है. व्हाट अबाउट 2 पाई? 2 पाई 6 प्लस होगा ना. सो Yes. lies inside the curve, whether 2 pi lies, No. yes or no? No. No. Okay, but z equal to 0 pi and minus pi lies inside the curve. तो आपको बस इन तीनों पॉइंट के लिए प्रॉब्लम है. ओके, सो दिस आर द पॉइंट्स वेयर योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. ओके, z इक्वल टू 0, z मैं रैंडम मतलब डायग्राम में शो कर रहा हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है. z इक्वल टू माइनस पाई. दिस आर द पॉइंट्स विच लाइज इनसाइड द कर्व C. Hence this function is not analytic only at these 3 points. ये इन जनरल था, बट अगर आप ये कर्व कंसिडर करते हो, okay, inside the curve mod z equal to 4. So for this specific curve, our given function is not analytic at these 3 points. So can we apply here Cauchy integral formula? Can we apply here Cauchy integral formula? No. No, because right now this function is not analytic at 3 points. 3 points पे वो analytic नहीं आ रहा है. Cannot apply Cauchy theorem. Okay, Cauchy theorem में एक ही पॉइंट चाहिए. Okay, so therefore by
Cauchy's रेसिड्यू थ्योरम, क्या आपका कॉची रेसिड्यू थ्योरम? द इंटीग्रल ऑफ g of z over a curve c dz is equal to 2 pi I, okay, residue at first point. It's better to consider this one, ठीक है अभी, residue at first point, second point and third point. अभी मैंने स्टार्टिंग से लिखा है तो अभी कोई प्रॉब्लम, मुझे R1 से स्टार्ट करना था, बट ठीक है, R0, R1 and R2. These are, as we have only three points which lies inside the curve. Therefore आपका थ्योरम क्या बन जाएगा? 2 pi I R0 R1 R2. यहाँ तक समझ में आ रहा है? Any doubt up to this step? बोलो quickly, yes or no? Takes time. No sir. No sir. Okay. Now let us calculate R0, है ना? अब इसके आगे सबसे important part है, ये separate आपको 2 marks के लिए एग्जाम में आने वाला, ठीक है? First calculate residue at Z0, कैलकुलेट रेसिड्यू एट पाई, कैलकुलेट रेसिड्यू एट माइनस पाई, ऐसे भी आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं एमसीक्यूज में. सो क्लेम 1 क्या है मेरा? आई हैव टू फाइंड द रेसिड्यू R0 एट विच पॉइंट? R0 बेसिकली क्या है? दिस इज द रेसिड्यू एट Z इक्वल टू 0. आई हैव टू फाइंड रेसिड्यू Z0 एट Z इक्वल टू 0. पहले पॉइंट का वो रेसिड्यू है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? What is the formula? फॉर्मूला क्या होगा? R0 इज इक्वल टू, आप बोलो, R0 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला देखो, हाँ ये, ओके. तो आपको क्या करना है? R0 जो पॉइंट सॉरी, ये फॉर्मूला पहले देखो, मैं इसको नीचे लेके आता हूं, इसको एज इट इज नीचे लेता हूं, और आप फिर, क्योंकि आपको फॉर्मूला देख के पहले समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या क्या लिखना है, देन बिकम इजी फॉर यू. पहले आप ये देखता हूँ कि आपको इससे समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये बेनिफिट होगा. ओके, अभी आप नीचे देखो प्रॉपर और मुझे बोल दो मुझे क्या क्या लिखना है. हाँ, सो R0 इज इक्वल टू 1 अपॉन, व्हाट इज द पोल ऑफ ऑर्डर एट फर्स्ट पॉइंट? क्या था फॉर्मूला? M0 ना, करेक्ट है ना ये? यस. हाँ, into d M0 minus 1, आपको अभी नोटेशन से भी समझ में आएगा, एंड dz M0 minus 1, okay, z minus z0. Z0 is the first residue point, raised to M0, this given function, कैलकुलेट एट z इक्वल टू Z0. अभी आप मुझे बोलो व्हाट इज Z0, M0, दिस वैल्यूज, ओके. हाँ, 1 by 1 में सारे लिख लेता हूं. पहले बोलो g ऑफ z क्या? g ऑफ z मींस गिवन फंक्शन. क्या है g ऑफ z? cos z cot upon z, sin z. cot z, Z है ना? upon Z. सो g ऑफ z इज cot z, ये समझ में आ गया. व्हाट इज द फर्स्ट रेसिड्यू पॉइंट? कौन से पॉइंट के लिए चल रहा है सब कुछ? 0 के लिए, 0. ठीक है. व्हाट इज द पोल? इसकी ऑर्डर क्या है? इसकी ऑर्डर क्या है? 1 ही रहेगी वो, ओके. अब ये कैसे है ना, क्योंकि आपको पता है दिस आर द फैक्टर्स, ओके. 0 कितने बार आ रहा है? आई विल गिव यू अ सिंपल लॉजिक. 0 कितने बार आ रहा है? Once. One कितनी बार आ time. रहा है ना, जितने बार वो रिपीट होता है ना, वो उसकी डिग्री आती है, ओके. एज सिंपल है, जितने बार वो रिपीट होता है वो उसकी डिग्री आती है. 0 एक ही बार आ रहा है, सो 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 1, ओके. गुड. और कुछ रह गया क्या इसमें? हो गया, डन. ओके, नाउ जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यूज एंड राइट डाउन दिस फॉर्मूला अगेन. लेट मी इरेज दिस. ये समझ में आएगा, जिसके आगे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. हाँ, सो R0 इज इक्वल टू, हाँ बोलो, 1 अपॉन M0 इज 0, सॉरी M0 इज 1, 1 minus 1 इज 0 फैक्टोरियल, ओके. d रेस टू 0 अपॉन dz रेस टू 0, z माइनस Z0 क्या है? 0. g ऑफ z क्या है? cot z. कैलकुलेट किससे करना है? z इक्वल टू 0 पे. इज दिस करेक्ट? रेस टू क्या है? 1. इज दिस करेक्ट? Yes or no? Yes. Okay, done. So, what is 0 factorial? 1.
डी रेस्ट टू जीरो भी 1 ही होता है ना, ये भी। सो z इंटू क्या रह गया फिर ब्रैकेट में, z और z कैलकुलेट करना है, z इक्वल टू 0 पे, तो क्या वैल्यू देगा वो, 0, क्या वैल्यू देगा वो, 0 करेक्ट है, करेक्ट ही है, बट वाई इट इज 0, इट इज नथिंग, because हाँ, लिमिट z टेंस टू 0, z ये क्या है, कॉट का मतलब क्या है, cos z अपॉन साइड z है ना, तो ये क्या जा रहा है, ये क्या जा रहा है, व्हाट इज द फॉर्म, अरे 0 by 0. 0 by 0. 0, तो आप कैसे बोल सकते हो डायरेक्टली 0, मे बी योर आंसर इज करेक्ट, आई डोंट नो, बट हाउ यू कंप्लीट दिस, इसके आगे आप कैसे करोगे फिर, हाँ, क्या करना है, बाय एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि 0 by 0 के लिए एक ही रिजल्ट है अभी तक मैथ्स में, इसके बाहर कोई रिजल्ट नहीं है। सो जस्ट टेक द डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड होल डिवाइडेड बाय cos z, अभी पुट करो, क्या मिलेगा, 1. 0 is 1, this is 0, क्या आंसर मिल रहा है, 1. 1, ओके, सो योर आंसर इज रॉन्ग, ओके, तो ये आपको प्रॉपर देखना होगा, डायरेक्टली z इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे मत करो, बिकॉज इट इज 0 by 0 फॉर्म। सो अभी आपको क्लियर हो रहा है कि ऐसे तो नहीं हो सकता, आंसर डिफरेंट आ रहा है, सो आर नॉट इज 1, ये हो गया पहला पार्ट, ओके। नाउ कम टू सेकंड, अभी सेकंड मतलब रिपीट ही है, ओके, क्लेम 2, फास्ट करने दो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लेने। क्लेम 2, वी हैव टू फाइंड रेसिड्यू z1 एट z इक्वल टू, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, पाई लिया है ना, नेक्स्ट पॉइंट इज पाई। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, बोलो फास्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ r1, अभी आप बोल दो, आपको आना चाहिए, 1 अपॉन m1 minus 1 1 minus 1 factorial, very good, d raised to m1 minus 1 upon dz raised to raised to m minus 1 z minus zn z1 z1 correct, z1 हाँ, raised to raised m1 to m1 multiply by g of z, dz. calculate at z equal to z1, z1 okay, what is z1, pi ना, point, yes point, हाँ, what is m1, इसके ये एक ही बार आ रहा है, so order is 1 और क्या रह गया, हो गया, जो ऑब्जेक्ट पता ही है, जो ऑब्जेक्ट इज कॉट जेड, फास्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि सिंपल है। सो r1 इज इक्वल टू, अब ये सेम होगा 1/0 फैक्टोरियल, नेक्स्ट d रेस टू 0, 1 पावर आती है ना ये, तो ये सारे ऐसे आते हैं, d रेस टू 0, dz रेस टू 0, z माइनस क्या है बोलो, pi pi, ओके, एट जो ऑब्जेक्ट मीन्स कॉट z, कैलकुलेट एट z equal to pi. So this is nothing but in bracket z minus pi cot z at z equal to pi. कैसे करना होगा, फिर से इसको लिमिट से ही करना होगा, ओके। सो इट इज इक्वल टू z, ये इसका मतलब वही है, z इक्वल टू पाई कैलकुलेट करो, मतलब लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करो, ये करेक्ट ही है। सो z माइनस पाई cot z अपॉन साइन z, करेक्ट। कौन सा फॉर्म आ रहा है ये, अभी 0 by 0 फॉर्म है, तो yes हॉस्पिटल रूल यूज करना है। सो व्हाट इज दैट हॉस्पिटल रूल, टेक द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय cos z, एल हॉस्पिटल रूल, तो लिख लेता हूं, आगे कैसे करोगे, पुट z इक्वल टू पाई, cos pi is minus minus 1, minus 1 cos pi is -1, so answer is
Yes. ओके ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट आपका माइनस पाई. सो कैन यू टेल मी डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ R2? जरूरत नहीं इतना सब कुछ करने की. ओके क्लेम 3. कैन यू टेल मी डायरेक्टली वैल्यू ऑफ R3? आप लेके बोल दो क्या लिखना है मुझे R3 का. -1. हाँ मैं मतलब इससे जाता हूँ. 1 माइनस 0 फैक्टोरियल, ये वैसे ही रहेगा. d रेस टू 0 dz रेस टू 0 z माइनस दैट पॉइंट. क्या था वो पॉइंट अभी? माइनस पाई ना, है ना. वो लिखूँ क्या, कौन से पॉइंट के लिए चल रहा है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको ऊपर देख के भी समझ में आ जाएगा. आई एम नॉट. सो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट रेसिड्यू R1 R0 R1 R2 एट z इक्वल टू माइनस पाई. और इसकी भी ऑर्डर 1 ही है, पोल ऑफ ऑर्डर 1 है. सो इसका जो m2 है वो 1 है, तो इसलिए ये ट्रिवल हो रहा है. तो वही मैं कर रहा हूँ सब कुछ. रेस टू 1 g ऑफ z इज कॉट z. ओके कैलकुलेट एट z इक्वल टू माइनस पाई. सो R3 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू माइनस पाई. क्या मिलेगा मुझे? z प्लस पाई कॉस z अपॉन साइन z. एंड व्हाट इज दिस? बोलो. डू इट. 1. क्या आंसर दे रहा है वो? 1. वही होगा, वो सेम ही अप्रोच से जा रहा है सब कुछ. Therefore, your final answer integral over c g of z dz which is equal to integral over c cot z dz which is equal to 2 pi I R0 R1 and R2 and that is nothing but तीनों की वैल्यू क्या है? 1 plus 1 plus 1 and that is 6 pi I. ओके क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ अब ये थोड़ा इजी था. ओके ये जो थर्ड क्लेम ना मैंने इसलिए जंप किया है क्योंकि ये सेम अप्रोच है. ये पाई की जगह पे माइनस पाई रख दो और करो कैलकुलेशन. सो नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. ओके इसलिए मैं थोड़ा क्विकली किया है मैंने. सो नाउ लेट मी टेक लिटिल डिफिकल्ट. ओके इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ. बस मुझे ये चेक करने दो इसके लिए इंटरवल क्या थी. एंड इट इज ऑलरेडी सॉल्व. इन दैट पीडीएफ इट इज ऑलरेडी सॉल्व. क्या है वो? mod z इक्वल टू 4. ठीक है कंटूर गिवन है mod z इक्वल टू 4. हाँ अभी इसमें कुछ डाउट्स आते तो आप पूछो. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ठीक है यस. सो इन सोल्यूशन हाँ सो व्हाट इज गिवन? वी हैव गिवन g ऑफ z इज इक्वल टू साइन पाई z स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर है सब कुछ. हाँ प्लस 2z अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू z माइनस 2 है ना. और डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है सो इट इज एक्चुअली अ सर्कल. ठीक है एंड mod z इक्वल टू 4 और 4 रेडियस का वो सर्कल है. ठीक है इससे भी समझ में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ सो नाउ फर्स्ट टेल मी व्हाट आर द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ g ऑफ z. देयरफॉर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ g ऑफ z आर. क्या है सिंगुलर पॉइंट्स? बोलो. टेल मी द पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन 1 and 2. 1 and 2. 1 and 1 2. को ओके 1 and 2 गुड. एंड कौन से पॉइंट्स सर्कल के अंदर है? both. Both. Okay and both means z equal to 1 and z equal to 2 lies inside the curve mod z equal to 4. चलो तो अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने सर्कल के अंदर आ रहे उतने आपको कंसिडर करने. यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, दोनों सर्कल के अंदर आ रहे एंड मोर देन 1 पॉइंट है. देयरफॉर बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम व्हाट वी हैव इंटीग्रल ओवर c g of z dz is equal to, can anyone tell me this?
क्या लिखना है आगे बोलो? जी ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू, बोलो 2 पाई आई इन ब्रैकेट व्हाट? R0 plus R1. आर नॉट प्लस आर वन. ओके गुड, दो ही पॉइंट है ना. सो आर नॉट प्लस आर वन. करो कैलकुलेट, दोनों कैलकुलेट करो. डन. ओके सो let me do the calculation for R naught. So claim 1 is R naught का फॉर्मूला. ओके सो स्लोली मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर बाद में वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ R naught? 1 upon R0 minus 1. 1 अपॉन एम नॉट. मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, बाद में ये वैल्यूज कैलकुलेट करके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को वैसे ही समझ में आएगा. सो एम नॉट माइनस 1 फैक्टोरियल डी रेस टू एम नॉट माइनस 1 डी जेड रेस टू एम नॉट माइनस 1. क्या था यहाँ पे? जेड माइनस जेड नॉट जी ऑफ जेड कैलकुलेट एट जेड इक्वल टू जेड नॉट. नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज एम नॉट? एम नॉट Sir, से पहले, हाँ जस्ट 1 मिनट. ये बोलो व्हाट इज जेड नॉट. पॉइंट क्या है? कौन से पॉइंट के लिए चल रहा है सब कुछ? ये पहला पॉइंट जेड इक्वल टू 1. आप कुछ भी ले सकते हो. हाँ sir, हाँ बोलो. सॉरी sir, Z minus Z naught bracket का power M naught. सॉरी, हाँ वेरी सॉरी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे वो कैंसिल होने वाला है. एम नॉट, हाँ ये पावर एम नॉट या एम नॉट माइनस 1 नहीं है, रिमेंबर. तो कौन सा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? जेड इक्वल टू 1, तो वो मैंने लिया जेड नॉट. आर नॉट क्लेम में चाहे तो आप ऐसे लिखो आर नॉट एट जेड इक्वल टू 1. सो कौन से पॉइंट के लिए चल रहा है? 1 पॉइंट के लिए. उसकी डिग्री क्या है और उसकी व्हाट इज द पोल? 1 का पोल क्या है? 2. 2. और क्या है रिमेनिंग? जी ऑफ जेड, तो वो पता ही है, बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ. साइन पाई जेड स्क्वायर साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस 2z अपॉन जेड माइनस 1 स्क्वायर एंड जेड माइनस 2. चलो लेट्स डू इट. देयरफॉर आर नॉट इज इक्वल टू, अब बोल दो 1 अपॉन व्हाट? 1. 1 फैक्टोरियल ना, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल. नेक्स्ट इज d1 मतलब d ही ओनली अपॉन dz raised to 1 is simply d by dz, first derivative. Next is z minus 1. Raised to square multiply by this g of z. g of z क्या है? sin pi z square plus 2z z minus 1 square z minus 2 calculate at z equal to 1. ओके फास्ट करता क्योंकि 10 मिनट में ये पूरा होना चाहिए. नेक्स्ट इज, ये तो 1 ही हो गया. अभी इसको कैंसिल करके लिख लेते हैं पहले. सो डी बाई डी जेड. नाउ दिस कैंसिल विद दिस, ये हमेशा इससे कैंसिल ही होगा. हाँ इसलिए तो वो पावर वैसे आ रही है. डी बाई डी जेड ऑफ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? क्या है वो? साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस 2z अपॉन क्या रहेगा नीचे? Z minus 2. z माइनस 2. वो फैक्टर कैंसिल हो गया. पहले इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो और फिर उसमें z इक्वल टू 1 पुट करो. पहले 1 पुट करके डेरिवेटिव नहीं लेना है. रिमेंबर द स्टेप्स. पहले डेरिवेटिव लेके बाद में z इक्वल टू 1 पुट करना है, तो टोटल रॉन्ग करोगे. क्योंकि z इक्वल टू 1 पुट किया तो डेरिवेटिव मतलब लोगे कैसे आप? देयर इज नो z, तो हमेशा वो 0 ही देगा. सो इट इज इक्वल टू, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द डेरिवेटिव. u अपॉन v का रूट. सो इट इज v स्क्वायर, करेक्ट. सो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? साइन का डेरिवेटिव कॉस ना. सो कॉस मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट 2z pi. Twice pi z. हाँ 2 पाई z. हाँ सॉरी, ये था पहला पार्ट. प्लस 2z का 2. 2. तो v टू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस 2z इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. वो क्या आएगा? 1 है ना. तो ये ठीक है. ओके थोड़ा लेफ्ट साइड में लेता हूँ. ओके
so equal to this, and now this is in a bracket actually, and z equal to क्या चल रहा है 1 चल रहा है. ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो. बोलो, आप चाहो तो यहीं पे वैल्यू पुट करके भी जा सकते हो अब, क्योंकि आपने डेरिवेटिव सॉल्व किया अभी. नाउ डायरेक्टली पुट करो, क्योंकि ज्यादा सिंप्लीफिकेशन में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है. जस्ट पुट z इक्वल टू 1 एंड टेल मी द सिंप्लीफिकेशन. ओके, z इक्वल टू 1, ऊपर क्या मिलेगा यहाँ पे -1 इन ब्रैकेट. बोलो, आप बोलते जाओ बस. cos पाई क्या होता है -1 ना. बोलो आप, व्हाट इज cos पाई? -1. -1 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई है ना. z इज 1, सो करेक्ट है ये. -2 पाई +2 Yes. माइनस साइन पाई 0, एंड ये क्या आएगा z इक्वल टू 1 2. प्लीज करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग. एंड 1 minus 2 का स्क्वायर इज 1, नो नीड टू राइट दैट. ओके, सो फाइनली यू विल गेट 2 पाई, ये आ जाएगा -2 -4. करेक्ट है क्या ये? इज दिस करेक्ट? प्लीज चेक. लुक करेक्ट. करेक्ट है? करेक्ट और नॉट? बोलो. Yes, sir. ओके, चलो, दिस इज माई आर नॉट. ओके, नाउ लेट मी कैलकुलेट रेसिड्यू एट सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट आपका क्या है 2 है ना. सो नाउ सेकंड क्लेम 2, रेसिड्यू z1 एट द पॉइंट था 2. ठीक है, सो फॉर्मूला चाहिए मुझे किसका? r1 का. सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ r1? r1 का फॉर्मूला क्या होगा? 1/m1 - 1 फैक्टोरियल t raised to m1 - 1 upon dz raised to m1 - 1 g of z, sorry, multiply by what? z minus z1 raised to m1 into g of z, calculate at z equal to z1. now tell me all these values. so point क्या है? z1 is 2. उसके ऑर्डर क्या है? m1 ऊपर में दिखाता हूँ आपको, फिर 1. 1 ही है. ठीक है, सो z - 2 की पावर क्या है? 1 है. गुड, 1 है. एंड व्हाट इज g ऑफ z? g ऑफ z में चाहो तो ऊपर से कॉपी कर सकता हूँ. सो व्हाट इज g ऑफ z? यहाँ पे अभी तो लिखा था हमने. सो दिस इज माय g ऑफ z. ठीक है, डन. So now put all these values and do the simplification. So it is equal to, so r1 equal to, अभी बोलो 1 है पावर तो 0 फैक्टोरियल. 1 आता तो सिंपल होता है, इसलिए ज़्यादा एमसीक्यूज में आपको इसके क्वेश्चन आते हैं. 1 आता तो सिंपल होता है. सो d रेस टू 0, क्योंकि डेरिवेटिव नहीं आता ना. dz रेस टू 0, z minus 1, z minus 2, sorry, z minus 2 multiply by this function which is sin pi z square plus 2z upon z minus 1 square into z minus 2, calculate at z equal to z1 which is 2. okay, so it is nothing but r1 is equal to, क्या होगा ये? z minus 2 cancel with this, you will get only sin pi z square plus 2z upon what? Z minus 1 square. z minus 1 whole square. इस केस के ज़्यादा एग्जाम्पल आपको एमसीक्यू में आता है, जहाँ पे ये पोल 1 होगा. पोल 1 के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं. z equal to 2 करो, just put the value 2, that solve the question, that completes the problem. sorry, z equal to 2 क्या मिलेगा? 4 पाई क्या होता है? sin 4 पाई 0. 0. plus 4 upon 2 minus 1 whole square is 1, so that gives me r1 is 4. done. So therefore integral of this given function dz, which is equal to 2 pi I r naught plus r1. okay, so
so which is equal to 2 pi I. What is my R naught? R naught I think 2 pi minus 4 आया था और ये वैल्यू आ रही है 4. So what is my final answer? It will get cancelled. 4 pi I. 4 pi square ना, है ना? Yes. This is the final answer. Okay. एक और क्वेश्चन है जो बस मैं आपको ओरली दिखाता हूँ, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस रेसिड्यू थ्योरम. ठीक है, लास्ट 3-4 मिनट्स में हो जाएगा वो. एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन. इज इट विजिबल? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So evaluate the residue theorem. This is the function, and where your contour is this mod of z plus 1 equal to 2. So what is the center? इसका सेंटर क्या है? सेंटर क्या है z plus 1 equal to 2 का? -1,0. वेरी गुड. एंड रेडियस इज 2. तो वो मैंने पहले ड्रॉ किया है, नीचे आप देखो -1 0 एंड रेडियस इज क्या थी रेडियस 2. ओके हाँ. एंड फिर उसके बाद मैंने इस सो दिस गिवन फंक्शन, व्हाट आर दी सिंगुलर पॉइंट्स? कौन कौन से पॉइंट के लिए प्रॉब्लम है? व्हाट आर दी सिंगुलर पॉइंट्स? -1 एंड 3. Plus 3. हाँ, -1 एंड 3. दिस आर दी 2 सिंगुलर पॉइंट्स. तो ये दोनों पॉइंट्स, उनमें से कितने पॉइंट्स अंदर आ रहे हैं? आप ही बोल दो. -1 एंड 3 थे. कितने पॉइंट्स अंदर आ रहे हैं? 1. 1. एक नहीं आ रहा है, 3 बाहर जा रहा है. सो वी हैव प्रॉब्लम विद ओनली 1 पॉइंट. तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्यों नहीं आप यूज करो? आप कर सकते हो, उससे और इजी हो जाएगा. सो इट्स बेटर टू गो विद कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ऐसे केसेस में. बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे रेसिड्यू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक ही पॉइंट सर्कल के अंदर है, बट जस्ट क्योंकि दोनों से सेम आंसर देगा, जस्ट टू एक्सप्लेन दैट ये मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया. एक पॉइंट है तो आप इंटीग्रल से ट्राई करो, आप खुद आपको सेम आंसर मिलेगा. अभी मैं रेसिड्यू से करता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 pi I इंटू R1. अभी यहाँ पे थोड़ा नोटेशन मेरे से चेंज हुआ है. मैं यहाँ पे इस शीट में मैंने फर्स्ट पॉइंट को R1 बोला है और उस शीट में मैंने फर्स्ट पॉइंट को R0 बोला है, बट इट विल नॉट चेंज योर आंसर. आपको पता है, ये बस नोटेशन है. ठीक है. सो द पॉइंट, देयर इज ओनली 1 पॉइंट, सो R1 आएगा. ओके हाँ. आपको क्या क्या चाहिए? ये Z चाहिए. ये कौन सा पॉइंट है? -1 है. उसकी ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ -1? -1 का ऑर्डर क्या है? 3. है ना. तो ये था आपका पहला पॉइंट, मैं Z0 बोलता हूँ, एंड उसकी ऑर्डर क्या थी? 3. और आपको G ऑफ Z चाहिए. तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा. मैं डायरेक्टली फॉर्मूला दिखाता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा. 3, इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ. यही बिटवीन है ना, नोटेशन वाइज थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है. आप देखो, इस पे फोकस करो, इस स्टेप पे डायरेक्टली फोकस करो, आपको क्लियर हो जाएगा. जो मैं बोलता था वही है. सो 1 अपॉन दिस 3 - 1 फैक्टोरियल डन. d2 अपॉन dz स्क्वायर डन. z माइनस दिस नंबर, सो z प्लस 1 रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय g ऑफ z. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ओके. यानी इसका डबल डेरिवेटिव आएगा. तो ऐसे आने के चांसेस रेयर है. आपको 2 बार डेरिवेटिव ये ज़्यादा ही लेंथी होता है. ओके. बट इसको बस 2 बार डिफरेंशिएट करना. तो पहला डेरिवेटिव u अपॉन v रूल से ये मिलता है आपको पहला डेरिवेटिव, इसलिए मैंने नहीं लिया है. दिस इज फॉर होमवर्क, यू कैन ट्राई दिस. दिस द फर्स्ट डेरिवेटिव. एक और बार डिफरेंशिएट करना है. ओके. और जैसे सेकंड टाइम डेरिवेटिव होता है, आप इमीडिएटली उसमें ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं. आप इमीडिएटली इसमें z इक्वल टू -1 पुट कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड वी डोंट वांट डेरिवेटिव टर्म इन दैट स्क्वायर ब्रैकेट टर्म. ठीक है. सो जस्ट पुट z इक्वल टू -1. दैट गिव्स मी दिस -50 अपॉन 64. And if I multiply this with respect to 1/2, you will get -25 upon 64, and this is the only residue point, so we will get this. ठीक है. तब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आएगी. Why I am focusing more on the Cauchy integral formula if only 1 point lies inside the circle, क्योंकि इस केस में आपको डबल डेरिवेटिव से जाना पड़ेगा. ओके. और यहाँ पे Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला भी नहीं आएगा. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला जाएगा? एंड देन सेम ही होगा. इतना कुछ डिफिकल्ट, मतलब कॉची से भी जाओ या रेसिड्यू से भी जाओ, इतना कुछ चेंज नहीं होने वाला. बट अगर आप कॉची, मतलब इट्स बेटर टू कीप, इट्स बेटर टू यूज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर 1 पॉइंट एंड मोर देन 1 पॉइंट यू कैन गो विद रेसिड्यू थ्योरम. हाँ. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, कैन वी अप्लाई हियर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला और वी नीड एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला? दोनों में से कौन सा जाएगा यहाँ पे? Cauchy. जो सर्कल के अंदर है बट उसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है. उसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है. इट मीन्स यू हैव टू यूज एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला.
ठीक है, सो दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन ट्राई विद दिस रिजल्ट आल्सो। और देखो कि ये एक्सटेंशन का यूज़ करके और इससे ये दोनों आंसर सेम आते हैं कि नहीं। दिस PDF इज ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉचेज रेसिड्यू थ्योरम, ओके। सो विल स्टॉप हियर टुडे। Any doubt in this